Morning everyone. So today's chapter is cash flow statement. Cash flow statement is a statement showing inflow, यानी जो भी हम पेमेंट मिलता है या पेमेंट करते हैं तो उसका जो भी हम एक पर्टिकुलर ईयर में शो करते हैं पीरियड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट. अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड्स वो आइटम्स जो हमारे कैश रिलेटेड होते हैं, जो हमारे कैश के ट्रांजेक्शन से इफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेसेस को. नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट. The term cash stand here cash and cash equivalent. It can be prepared for past and it can be projected for a future period. अब जो हमारा कैश है वो किसके अंदर स्टैंड करता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर. एंड ये क्यों प्रिपेयर होता है, क्योंकि जो हमारे पास्ट के बेसिस पे एंड फ्यूचर को, ताकि हम इसके बेसिस पे प्रोजेक्ट कर सकें. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव. क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का? फर्स्ट, टू ascertain the sources of cash and cash equivalent from operating, investing and financing activities. अब हमारी कैश फ्लो के अंदर 3 टाइप्स की एक्टिविटी होती है. पहली ऑपरेटिंग, सेकेंड वन इज इन्वेस्टिंग, थर्ड वन इज फाइनेंसिंग. टू ascertain the application of cash and cash equivalent under investing and financing activity. Next, to ascertain the net changes in cash and cash equivalent. Fourth, to highlight major activities that have provided cash and that have used cash during a particular period and to show their effect on overall cash balance. अब जैसे कि इसमें क्या होता है, मेन हमारी एक्टिविटीज़ क्या होती है कि कैश को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं और वो जो हमारा कैश है एक पर्टिकुलर पीरियड में एंड उस कैश का क्या इफेक्ट हो रहा है जो हमारा ओवरऑल कैश बैलेंस है हमारे बिजनेस का, उस पर. नेक्स्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश, इट कॉम्प्रोमाइज कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, कैश इक्विवेलेंट. इसके कुछ फॉलोइंग फीचर्स हैं. द फर्स्ट फीचर इज 3 month, लाइक दैट इज कॉल्ड शॉर्ट मेच्योरिटी पीरियड. एंड इफ आई विल से 1 year और 3 year और 4 year, it will be considered as long maturity period. The second, investment, highly liquid into cash, highly risky and readily convertible. Highly liquid यानी those things which can be convertible into cash form at the time of business need. Highly risky are those investment which involves high risk. Higher the risk, higher the profit. Next, cash and cash equivalent compromises of the following. First, cash in hand. Another one, cash at bank. Third, current investment. Fourth, short-term investment and marketable security. Fifth, checks and draft in on-hand note. अब see here, bank overdraft and cash credit will not be considered as cash and cash equivalent. Why? It will just because bank overdraft and cash credit, according to our accounting standard, it will affect our business transaction, but we won't consider it under cash and cash equivalent. Next, classification of cash flow statement. According to Accounting Standard 3 revised, a cash flow statement should be presented in a manner that it report inflow, and inflow it means received and outflow it means payment, by classifying them into 3 categories. And what are that 3 categories? I already told you. Operating activity, second investing activity, and third one is financing activity. Ab here, cash flow from operating activity. Operating activities are the main revenue generating activities of an enterprise. Operating यानी generally we are operating our business. Okay? तो example, cash received from sale of goods and rendering of service. See, मुझे पैसा मिला, बट मुझे पैसा कहाँ से मिला? जब मैंने मेरे गुड्स को बेचा तो मुझे उससे क्या मिला? पैसा. तो गुड्स बेचना क्या है? वो मेरा एक्टिविटी है, यानी वो मेरा क्या है? बिजनेस है. तो बिजनेस मेरा वो बिजनेस एक्टिविटी है. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स ऑपरेशन ओवरऑल जो आप बिजनेस कैरी कर रहे हैं उसके बारे में है. तो कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विस. सेकेंड, कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस, कमीशन एंड अदर रेवेन्यू. क्या? अब रॉयल्टीज इज वन काइंड ऑफ generally rent. We use different terms for paying rent. So royalty is one of the form of rent. Fees, whatever the charges of particular service has been rendered to you. Commission, like suppose supplier, so he will charges few commission, so that includes under commission and other very few revenues. Third, cash received from debtors and bill receivable. Next, cash flow
from operating activities. Here there are few or more examples. Cash payment for purchase of goods and services. Like मैंने कुछ पैसे पे किए, बट मैंने किसके पैसे पे किए? जब मैंने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा या मुझे सर्विसेज रिसीव हुआ उसका मैंने पे किया. कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. कैश पेमेंट यानी जो मेरे उधार हैं, जिन्होंने मुझे पैसे दिए हैं, तो उनको मैंने क्या किया, कुछ चीज़ें पेमेंट किया. कैश पेमेंट ऑफ वेजेस यानी मैंने सैलरी दिया. अदर्स पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, जो अदर एम्प्लॉयज़ के हमारे जो कुछ फ्यू पेमेंट्स होते हैं जो मैंने किया, दैट इज़ फ्रॉम operating activities. Cash payments or refund of income taxes unless they can be specifically identified with the financing and investing activity. तब तक जब जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, सपोज मैं इनकम पे कर रही हूँ, रिफंड पे कर रही हूँ, तो स्पेसिफिकली जब तक मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर लेती हूँ कि वो मेरे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इंक्लूड है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इंक्लूड है. नेक्स्ट वन इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. Here, investing activity include the purchase of sale, long-term asset, plant and machinery, land, buildings, etc. not held for resale. अब वो सारे एक्टिविटीज़ जिसमें मैंने कोई चीज़ खरीदा है, बेचा है, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लॉन्ग टर्म एसेट जैसे लैंड हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब, बट मैंने जो भी ये लिया है दैट इज़ नॉट फॉर रीसेल. मैंने एक बार खरीद लिया, मैं इसको दोबारा नहीं बेचूंगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम इसलिए क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इट मीन्स फॉर ए लॉन्ग टर्म पर्पस. हियर few examples of investing activity. First one, cash payment to acquire fixed asset like our land, machinery, buildings. Intangible asset like goodwill, patents, copyrights, all this thing. Cash received from sale of fixed asset including intangible. अब मुझे कुछ पैसे मिले, कहाँ से? जो मैंने मेरे फिक्स एसेट थे उनको बेच के, या कुछ इंटेंजिबल एसेट्स को भी बेच के कुछ मुझे पैसे मिले. थर्ड, कैश पेमेंट टू एक्वायर शेयर, वारंट और डेब्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर enterprises. There are few more examples of investing activity, that is cash received from sale of shares, warrant or debt instrument of other enterprises. Cash loans and advances made to third parties. In case of financial enterprises, this will be treated as cash flow from operating activities. Next, cash repayment of advances and loans made to third parties. In case of financial enterprises, this will be treated as a cash flow from operating activities. Next, cash flow from operating activities. Again, there are few examples. Cash receipt of insurance claim for property involved in accident. Cash receipt of interest and dividend in case of financial enterprises. This will be treated as our cash flow from operating activities. Next, cash flow from financing activities. Here, those activity which result in change of capital and borrowing of the enterprise. यानी ओवरऑल मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, मैं किसी को फंड करना, एंड बोरिंग, जो मैंने अपने इंटरप्राइजेस के लिए कोई चीज़ें बोरो किया है. Few examples of financing activity. One, cash received from issuing of share and similar instrument. Another one, cash payment or buyback of equity share. Buyback of equity share यानी मैंने क्या किया, जो मेरे शेयर्स थे मैंने उनको दोबारा से खरीद लिया. ओके. नेक्स्ट, थर्ड, कैश रिसीव फ्रॉम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग सच एज इशूइंग बॉन्ड्स. बॉन्ड इज वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. डिवेंचर्स, लोन्स, लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म. Here, cash payment of interim dividend and previous year proposed dividend both are preference shares and equity से. अब यहाँ पे जो हमारे शेयर्स हैं वो दो टाइप्स के हैं. वन, that is your equity share, and another that is preference share. Okay. Cash payment for interest on long term borrowing such as debentures, interest, short term borrowing such as bank overdraft and credit. अब see in long term हम किस टाइप के borrowings देखते हैं? our debentures, ठीक है, एंड उस पर जो जैसे हमारे इंटरेस्ट हो गया. अब अगर मैं बताऊं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में मेरे क्या आएंगे? ओवरड्राफ्ट आएंगे एंड कैश क्रेडिट आएंगे. सिक्स्थ वन, चेंज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट. नेक्स्ट, पेमेंट एक्सपेंसेस ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिसमें हमारे शेयर्स हो गए एंड उसके कुछ इशू एक्सपेंसेस जो होते हैं वो. ओके, हियर इज द फॉर्मेट ऑफ आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट. ओके, तो सी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सी नोट 1. ओके. नेक्स्ट, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो डेप्रिसिएशन है उसको एड ऑन
ऐड करते हैं। फिर हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑन डिस्काउंट ऑफ इशू डिवेंचर्स हो गए। उसके बाद गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क अमोर्टाइज। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये सब हमारा क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसमें कुछ माइनस करेंगे यानी लेस करेंगे। तो व्हाट आर द आइटम्स जो हमारे उसमें से माइनस होंगे, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ओके, नेक्स्ट है मेरा बी। फर्स्ट हमें हमारा जो फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसमें पहला हमारा क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जो भी हमारे आइटम्स जो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं, जो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करते हैं, तो पहले वो हम सारा रिकॉर्ड करेंगे। फिर जो हमारा पार्ट भी होगा वो हमारा क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी जो मेरे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होंगी। तो जैसे कि प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट, जो भी मैंने टेंजिबल एसेट थे मैंने उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए। फिर इंटेंजिबल एसेट जैसे फॉर एग्जांपल गुडविल हो गया मेरा, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट and purchase of intangible fixed asset like goodwill and purchase of non-current investment। फिर हम क्या कर देंगे, net cash from used in investing activity and फिर हमारा अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ पे हमारे वो सारे चीज़ें इंक्लूड होंगी जो मेरे फाइनेंस एक्टिविटी से डील करेंगी। तो इसमें कुछ है जैसे कि मेरा प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग, प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग, इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, पेमेंट ऑफ लोन्स वेदर इट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर। हियर then we will calculate the whole amount and we will write here net cash from used in financing activity. Here अगेन नेट इंक्रीज और डिक्रीज जो भी मेरे कैश इक्विवलेंट, फिर यहाँ पे हम लास्ट में क्या करेंगे, मेरे जितने भी तीनों ट्रांजेक्शन थे तो उसका मैं क्या कर दूंगी, टोटल कर दूंगी। तो ये आई विल राइट ए प्लस बी प्लस सी। उसमें फिर मैं क्या करूँगी, जो मेरे क्वेश्चन में जो मेरा जो क्वेश्चन रहेगा उसमें मुझे गिवन रहेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगनिंग ईयर का, तो उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसमें ऐड ऑन कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मेरा आएगा लास्ट में टोटल करके जो अमाउंट आएगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। हियर नोट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इट्स नेट प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर आफ्टर अप्रोप्रिएशन। फिर हम ट्रांसफर ऑफ रिजर्व जो भी मेरे होंगे, बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बचे होंगे उसको ऐड करेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड जो मैंने उस पीरियड में पे किया है, प्रोविजन फॉर टैक्स जो मैंने उस करेंट ईयर में बनाया, फिर रिफंड ऑफ टैक्स में माइनस कर दूंगी, फिर मेरा टोटल क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो अमाउंट्स तो ये डन। थैंक यू सो मच। Hello everyone, here is the part 2 of cash flow statement. Now calculating operating activities from a different method, and here is the method, that is indirect method of calculation of cash flow statement from operating activity. Here is the format of calculation of cash flow statement from indirect method. See here, determination of net profit before tax, that is our first step. Here net profit of the current year after appropriation, you will put amount there. Add ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व, जो भी हमारे रिजर्व होंगे बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के, उसको ऐड करेंगे हम। फिर हमारा प्रपोज डिविडेंड आएगा, कौन सा आएगा, प्रीवियस ईयर का आएगा। फिर इंटरिम डिविडेंड जो मैंने उस ड्यूरिंग द ईयर में पे किया है वो आएगा। प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर, जो भी मैंने प्रोविजंस मेरे बनाए थे करेंट ईयर से रिलेटेड वो आएगा। फिर वहाँ पे मैं उसका टोटल अमाउंट लिख दूंगी। उसके बाद लेस रिफंड ऑफ टैक्सेस, उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, टोटल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। That's it. Here, second step, adjustment for non-cash and non-operating
आइटम्स टू बी एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट. तो क्या क्या आएंगे? डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस और इंटेंजिबल एसेट, मेरे जो भी बैड डेट्स होंगे उनको हम राइट ऑफ कर देंगे. लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, एंड क्रिएशन ऑफ प्रोविजन. कभी कभी क्या होता है, मुझे प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है. नेक्स्ट, थर्ड, third, adjustment in respect of changes in current asset and current liability. तो इंक्रीज इन करंट एसेट शुड भी हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें से डिडक्ट हो जाएगा. जो भी मेरा अगर करंट एसेट में डिक्रीज हो जाएगा तो वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी मेरा क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड होगा. बट वहीं अगर मेरा करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा. तो आपको बेसिक क्या याद रखना है? पहला, अगर मान लीजिए मेरा करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से डिडक्ट होगा, और वहीं मेरा अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड होगा, और मेरा अगर करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है तो वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड होगा, और वहीं मेरा अगर करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से वो क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा. तो ये थोड़ा सा है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है. नेक्स्ट है स्टेप 4, डिडक्ट इनकम टैक्स पेड. इनकम टैक्स जो भी मैंने पे किया उसको मैं किससे डिडक्ट करूंगी? कैश से, जो भी मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट किया है. तो जो अमाउंट मेरा जो आएगा आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. हियर नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. अब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2017 मुझे कितना दिया है? 25,000 दिया है. प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस एंड ऑफ द ईयर मेरा कितना दिया है? 80,000 दिया है. डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 12,500. अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 8,000. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 20,000. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 15,000. ट्रांसफर ऑफ टू जनरल रिजर्व 30,000. डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 22,800. डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 4,700. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो मेरा 1 अप्रैल को था दैट इज अवर 5,000. एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो मेरा एंड ऑफ द ईयर में गया है वो है मेरा 6,500. और जो भी मेरे एक्सपेंसेस मैंने बिगनिंग ऑफ द ईयर लाइक 1 अप्रैल 2017 में पे किया है वो मेरा कितना है? 2,000. अब यहाँ पे सोल्यूशन है मेरा उस क्वेश्चन का. अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स नोट आपका कितना है? 1 लाख. उसमें आपने एडजस्टमेंट जो नॉन कैश थे, जैसे आपका क्या मैंने कहा था, डेप्रिसिएशन ऐड होगा 12,500, गुडविल ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000, यहाँ पे आ जाएगा टोटल 40,500. तो इसका टोटल कितना आ गया? 1,40,500. नेक्स्ट अगेन ऐड डिक्रीज इन एसेट 20,800. डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000. एंड उसके बाद ऐड इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन आउटस्पेंडिंग दैट इज माई 26,300. तो टोटल मेरा कितना आ जाएगा? 1,66,800. हियर हम यहाँ पे लेस करेंगे. डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज 4,700. कैश एंड कैश जनरेटेड फ्रॉम द एक्टिविटीज दैट इज अवर 15,000. एंड नेट कैश फ्लो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आ रहा है? 1,47,100. आई होप इट्स क्लियर टू यू. सी अब हमें क्या करना है? जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है ना बिफोर टैक्स पे करने से पहले मुझे उसको क्या करना है? कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा कितना गिवन है? 80,000. उसके बाद मेरा जो एंड ऑफ द ईयर का बचा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है वो मेरा कितना है? 25,000. उसके बाद मुझे उसमें जो भी मैंने जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र किया है या जो भी मैंने प्रोविज़न टैक्स पे किया है उस पर्टिकुलर ईयर में, तो वो दोनों को मैं क्या कर दूंगी? उसमें ऐड ऑन कर दूंगी. तो मेरा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि मेरा कितना है? 1 लाख. यहाँ पे एक नोट गिवन है, इट इज़ एज्यूम दैट कि जो भी मैंने टैक्स पे किया है ड्यूरिंग उस ईयर में तो वो मेरा क्या है? इक्विवेलेंट है. किसके इक्विवेलेंट है? प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन जो मेरा उस पर्टिकुलर ईयर में है. नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन. The profit of Philips Limited after the appropriation of 2,50,000. This profit was arrived after taking into consideration the following item. Here, depreciation on fixed asset tangible machinery that is over 20,000. Loss on sale of fixed asset tangible asset furniture 2,000. Goodwill written off 9,000. Provision for taxation 35,000. Transfer to general reserve 17,500. Gain on sale of tangible asset that is over 8,000. Here is the additional information जो हमें प्रोवाइड किया गया है. ट्रेड रिसीवेबल
for a different year 50,000, 62,000, trade payable 45,000, 55,000, inventory 12,000, 8,000, income received in advance 8,000, outstanding expenses 6,000, 3,000 and prepaid expenses 5,000. और यहाँ पे बताया कि आपको कैलकुलेट करना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. Here is the solution. Calculation of cash from operating activities for the year ended 31st March 2019. Not net profit before tax. ये नोट 1 क्यों लिखते हैं? हम जो वर्किंग नोट बनाते हैं ना उसी से हम लिखते हैं. तो अब मेरा कितना आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 3,02,500. Adjustment for non-cash and non-operating activity, add depreciation on fixed asset tangible 20,000, loss on sale of tangible 2,000 and goodwill return of 9,000. तो that is total 31,000. उसके बाद मुझे क्या करना है? लेस करना है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, दैट इज ओवर 8,000. नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसमें मेरे कुछ आ गए. डिक्रीज इन करंट एसेट जिसमें मेरा इन्वेंट्री आया, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज आया एंड ट्रेड पेबल आ गया, दैट इज योर 14,000. तो हियर इंक्रीज इन करंट एसेट 12,000, ट्रेड रिसीवेबल 5,000, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज जिसमें मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 3,000, तो मेरा टोटल कितना आ गया? 28,000. उसके बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मेरा है कितना? 35,000 जो मैंने टैक्स पे किया है. तो उसके बाद लेस करके मेरा क्या आ जाएगा? 2,76,500. तो ये मेरा क्या है? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. अब यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया मैंने, आपको क्या कहा था? जो हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन 2,50,000, एड प्रोविजन फॉर टैक्स 35,000, एड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 7,500. तो मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आ गया? 3,02,500. तो इट विल बी एज्यूम कि जो भी मेरा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो ड्यूरिंग द ईयर इक्वल है किसके? जो भी मैंने टैक्सेशन का पेमेंट किया है फॉर द ईयर. थैंक यू.